دوستو اچھی اور بہتر غذائیت رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جن کی غذائیت بہت زیادہ اور وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ نیوٹریشن سے بھرپور ان غذاؤں کو سپر فوڈز کہتے ہیں۔ سپر فوڈز کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ وہ غذائیں ہوتی ہیں جن کی تحقیق کرنے کے بعد ان کی غذائیت اور افادیت کے مد نظر سپر فوڈز کا درجہ دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹاپ سپر فوڈز کے بارے میں بات کریں گے۔ ایپل یعنی کہ سیب۔ سیب غذائیت اور فائبر سے بھرپور پھل ہے۔ اس میں پیکٹین نامی فائبر ہوتا ہے جو ہمارے دماغ اور جسم دونوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ سیب ہمارا وزن کم رکھتا ہے، کولیسٹرول کو مینٹین رکھتا ہے، یہ آپ کے موڈ کو اور دل کی صحت کو امپروو کرتا ہے۔ اس پھل میں بھی اچھے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر قسم کا سیب وٹامن سی اور پوٹاشیم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک صحت مند رکھتے ہیں۔ آپ کو بازاری پروسیس فوڈز اور جنک فوڈز کے مقابلے میں سیب کھانے کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ سپینچ یعنی کہ پالک۔ پالک بھی ایک بہترین سپر فوڈ ہے۔ پالک وٹامن سی اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ سبزی اینٹی آکسیڈنٹس، میگنیشیم اور فولیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں دماغی صلاحیتوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کینسر کے خلاف بھی لڑتے ہیں۔ پالک میں بہت اچھی اور وافر مقدار میں آئرن اور کیلشیم ہوتا ہے۔ پالک کینسر اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ پالک میں کیلے سے زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے۔ پالک کو کچا کھائیں یا پکا کر کھائیں، بہتر ہے کہ اس کو آپ ہلکا سا ابال لیں یا تھوڑے سے پانی میں سوتے کر لیں تاکہ اس کی غذائیت محفوظ رہے۔ پالک کو اپنی غذا میں ضرور رکھنا چاہیے، یہ ایک بہترین سپر فوڈ سبزی ہے۔ سویا بین بھی ایک سپر فوڈ ہے اور یہ پروٹین حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس سے روزانہ 25 گرام سویا پروٹین حاصل ہوتی ہے۔ سویا بین کھانے سے کولیسٹرول کی سطح بھی کم رہتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو نارمل کر کے خون میں موجود کلوٹنگ اور دل کے دورے کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے اور فائدہ مند غذا ہے۔ دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں سے ملنے والا پروٹین جس طرح ہڈیوں کے لیے آسٹریوپروسس کے لیے بہتر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سویا پروٹین بھی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، لہٰذا سویا بین بھی آپ کی ڈائٹ میں ضرور ہونا چاہیے۔ جنجر یعنی کہ ادرک۔ ادرک ہزاروں سالوں سے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ادرک میں موجود جنجرول ہمیں کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، خاص طور پر کولن کینسر سے۔ ادرک نہ صرف ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے بلکہ جسم میں موجود انفیکشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ادرک بہت اچھی غذا بھی ہے اور بہت اچھی دوا بھی ہے، لہٰذا ادرک کو ہر صورت میں اپنی ریگولر ڈائٹ میں ضرور رکھیں۔ واٹر میلون یعنی کہ تربوز۔ یہ ایک ایسی غذا ہے جو پانی سے بھرپور ہوتی ہے اور ہماری جلد کے لیے واٹر فوڈز بہت مفید ہوتی ہیں۔ صرف ایک کپ تربوز میں پانی، فائبر، وٹامن اے، وٹامن سی اور پوٹاشیم کا خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ تربوز اینٹی آکسیڈنٹس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس پھل میں لائکوپین ہوتا ہے جو ایک کیروٹانائڈ ہے اور یہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ 1 سے 1.5 کپ تربوز میں 9 سے 13 ملی گرام لائکوپین ہوتا ہے اور یہ لائکوپین آپ کو کینسر اور دل کی بیماری سے تحفظ دیتا ہے۔ تربوز ایک بہت اچھی اور صحت مند غذا ہے۔ جب تربوز کا سیزن ہو تو اسے ضرور کھانا چاہیے۔ چیا سیڈز۔ چیا سیڈز یعنی کہ تخم ملنگا، یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں پروٹین، اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن بی، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چیا سیڈز میں فائبر کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے چیا سیڈز بہت بہترین ڈائٹ ہے کیونکہ یہ بہت اچھی اور سادہ غذا ہے۔ چیا سیڈز کو آپ کے کھانے کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ دن میں کم از کم 1 چمچ چیا سیڈز تو آپ کو ضرور کھانا چاہیے۔ سالمن فش یا کوئی بھی عام فش، سالمن فش ہو یا عام فش ہو، مچھلی پروٹین حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے اور ہمارے پٹھوں اور سیلز کی گروتھ کے لیے پروٹین سب سے ضروری چیز ہے۔ اس سپر فوڈز میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی بھرپور مقدار ہوتی ہے اور ہماری شریانوں میں خون کے اچھے بہاؤ کے لیے لچک کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے استعمال سے ہماری شریانیں ہمیشہ لچکدار رہتی ہیں اور خون کا بہاؤ بہترین طریقے سے ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا کولیسٹرول لیول مینٹین رہتا ہے بلکہ ہمارا دل بھی صحت مند رہتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور وٹامن ڈی ہمارے میٹابولزم کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمارے دماغ کی کارکردگی کو بھی بہتر رکھتے ہیں اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتے
करते हैं और आप कॉलन कैंसर से महफूज रहते हैं। दिल सेहतमंद रहता है। दूसरी समुद्री खुराक की तरह सालमन फिश भी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मछली को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं। ब्रोकली भी एक बहुत अच्छी सेहत बख्श ग़िज़ा है। आपकी बॉडी को दरकार एनर्जी की बड़ी जरूरत को सिर्फ ब्रोकली से ही पूरा किया जा सकता है। ब्रोकली में फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन सी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कैंसर सेल्स से फाइट करते हैं और इन्हें बढ़ने से रोकते हैं। ब्रोकली को आप एक हेल्थी और सुपर स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ब्रोकली खाने से आपकी बॉडी में कम से कम 1 ग्राम से ज्यादा चर्बी कम होती है। आप अपनी फैट रिच स्नैक्स की जगह पर ब्रोकली स्नैक्स खा सकते हैं। ब्रोकली में मौजूद एंटी एजिंग खसूसियात और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी जिल्द के लिए बहुत मुफीद हैं। ये आपकी जिल्द को हमेशा यंग और स्मूथ रखते हैं और आप अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। ब्रोकली में मौजूद डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स आपको पूरा दिन एक्टिव और फिट रखते हैं। ब्रोकली एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की सुपर फूड है और आपको अपनी डाइट में ब्रोकली को जरूर शामिल रखना चाहिए। बीन्स यानी कि फलियां, ये फलियां भी ग़िज़ाइयत का खजाना है और ये फलियां भी रोजाना खानी चाहिए क्योंकि ये आयरन हासिल करने के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक ले जाने के लिए हमें सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिस्म में आयरन की कमी है तो एनर्जी की कमी भी रहेगी। खसूसन ख़वातीन और बच्चों में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी ग़िज़ा में आयरन वाली डाइट का इजाफा करें ताकि जिस्म में आयरन पूरा रहे और खून की कमी किसी सूरत ना हो। बीन्स यानी कि फलियों में मौजूद फाइबर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह बैलेंस रखता है। इस ग़िज़ा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से शुगर के लेवल को भी बैलेंस रखता है। बीन्स को खाने के बाद आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो बहुत देर तक आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है। बीन्स में उन विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना छुपा होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारा दिमाग, हमारी हड्डियों और दांतों की सेहत और मजबूती के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। इनके इस्तेमाल से हमें हाई बीपी और फालिज का खतरा भी नहीं रहता। अंडे की अफादियत से कौन वाकिफ नहीं है। अंडा एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की बैलेंस डाइट है। प्रोटीन हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया होते हैं अंडे, इसीलिए ये एक बेहतरीन पावरफुल नाश्ता भी है। अगर सुबह सुबह अंडों की शक्ल में आप एक प्रोटीन रिच नाश्ता कर लेते हैं तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं और फुलनेस का एहसास भी होता है। अंडा एक भरपूर और कंप्लीट मुतवाज़न ग़िज़ा है। इसकी जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। अंडों में विटामिन डी की भी अच्छी खासी मिकदार होती है जो हड्डियों और पट्ठों के नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंडों के इस्तेमाल से मसल्स की भी अच्छी खासी ग्रोथ होती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अंडे भी आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। सब्ज चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, बल्कि ग्रीन टी के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स को फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से बेहतर माना जाता है। ग्रीन टी में कैटाचीन नामी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं बल्कि साथ साथ दिल की बीमारी के खतरात को भी कम करते हैं। एक तहकीक से ये भी पता चला है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारी को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आपके ज्यादा वजन को भी कम करते हैं। दिन में कम से कम 1 मरतबा तो ग्रीन टी जरूर पीनी चाहिए। ओट्स बहुत अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा है और ये भी एक सुपर फूड ही है। ओट्स के अंदर फाइबर का खजाना छुपा हुआ होता है और ओट्स के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नॉर्मल रहता है। ओट्स में बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और बीटा ग्लूकोन भी होता है। बीटा ग्लूकोन एक ऐसा फाइबर है जो बड़ी आसानी से हल हो जाता है और आपका निज़ाम हजम बड़ा स्मूथली काम करता है। बीटा ग्लूकोन फाइबर आपके खून में मौजूद शुगर के लेवल को कंट्रोल रखता है और इसमें बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो आपके आसाब को मजबूत करता है और आपके पट्ठों की रिपेयरिंग भी करता है। ओट्स खाने से दिल की बीमारियों के खतरात भी कम होते हैं। ये एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। इसको आप हल्की फुल्की वर्जिश के बाद भी खा सकते हैं। इस सब्जी में कुछ ऐसे मुरक्कबात की निशानदही की है जो कैंसर के खिलाफ काम करते हैं। इसमें मौजूद फाइटो कंपाउंड्स कैंसर के जरासीम को जिस्म में पलने ही नहीं देते और इनमें फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मैदे का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर,
जैसे खतरनाक अमराज से आपकी बॉडी को महफूज रखने वाली सब्जी है बंद गोभी। बंद गोभी को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। ये सब्जी दिल की बीमारी और मैदे से जुड़ी बीमारियों को भी ठीक करती है। एक दिमागी मर्ज अल्जाइमर से भी तहफ्फुज दिलाती है। बंद गोभी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के जैसे विटामिन हासिल करने का बहुत अच्छा जरिया है। इसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस होने का अंदेशा कम हो जाता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो वो बंद गोभी से बनी चाय यानी कि कहवा जरूर पिएं। फौरी तौर पर दर्द खत्म होगा। बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि बंद गोभी को भी पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आप इस सब्जी को बतौर सलाद भी खा सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम ग़िज़ाएं सुपर फूड्स की कैटेगरी में आती हैं। इन ग़िज़ाओं को अपनी ग़िज़ाओं में जरूर शामिल रखें और सेहतमंद रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन ग़िज़ाओं से फायदा उठा सकें।